ऑब्जेक्टिव्स क्या है? द प्राइमरी एम ऑफ द फर्स्ट एड इज टू प्रिजर्व द लाइफ ऑफ द विक्टिम। ये आपका चैप्टर फर्स्ट एड, उसमें सबसे पहले हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है इसके बारे में। फर्स्ट एड में बी डिफाइंड एज द इमीडिएट बट टेम्पररी ट्रीटमेंट गिवन टू द विक्टिम ऑफ एक्सीडेंट और सडन इलनेस करेक्टली बिफोर मेडिकल हेल्प इज अवेलेबल। और उसके बाद है कि फर्स्ट एड डजंट मीन अ कंप्लीट केयर एंड क्योर ऑफ इलनेस। उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स में क्या है? द प्राइमरी एम ऑफ द फर्स्ट एड इज टू प्रिजर्व द लाइफ ऑफ द विक्टिम। सबसे पहला एम क्या होना चाहिए फर्स्ट एड का? कि हमने विक्टिम की लाइफ को बचाना है। सेकेंड है टू मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ इंजरी, टू मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ इंजरी and prevent further injury, and to prevent further injury. Third is to make medical aid available at the earliest, to make the medical aid available at the earliest. ठीक है भैया, आपके ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद है आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ फर्स्ट एड, फर्स्ट स्टेप्स ऑफ फर्स्ट एड। तो इसमें सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट क्विक एंड केयरफुल इवैल्यूएशन, क्विक एंड careful evaluation of the situation। जल्दी से और ध्यान से सिचुएशन को समझना है पहले ये हुआ क्या है, तो ही आप उसकी ट्रीटमेंट या फर्स्ट एड दे पाएंगे। अगर उसके खून निकल रहा है तो आप उसको गोलियां दोगे तो उससे तो कुछ होना नहीं। ठीक, ऐसे ये सेकेंड पॉइंट टू थिंक ऑफ ABCs, to think of ABCs, that is A is airway is not blocked, airway is not blocked। The victim is breathing, the victim has a pulse, the victim has a pulse। तो ये है आपका ABC। A is airway is not blocked, B the victim is breathing, third circulation, the victim has a pulse। थर्ड पॉइंट check for bleeding, check for bleeding।
Fourth is prevention and management of shock. Prevention and management of shock. Fifth point, important point, इसके बारे में पहले भी बताया था. Don't give fluids. Don't give fluids to unconscious or semi-conscious patients. Don't give fluids to the unconscious or semi-conscious patients. वो क्यों? As the fluids may enter his windpipe. As the fluids may enter his windpipe and can cause suffocation. And can cause suffocation. Don't give fluids to unconscious or semi-conscious patients, as the fluids may enter his windpipe and can cause suffocation. Next point, keep the patient warm. Keep the patient warm. तो वार्म करने के लिए हम क्या करते हैं? हैंड्स या फीट्स को रब करते हैं, ठीक. And comfortable as far as possible. जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आते हैं तो हम सबसे पहले उसको या लेटाते हैं, या अगर नीचे है तो प्रॉपर उसको चेयर पे बिठाते हैं. उसके बाद ही उसके हैंड्स या फीट्स वगैरह रब करते हैं. ये तो नहीं उसको नीचे पुंजे सूटे देते. उसके बाद आपका reassure the patient. Reassure the patient and try to remain calm. And try to remain calm and cool yourself. Try to remain calm and cool yourself. ठीक है, ये तो ये थे आपके फिर फर्स्ट एड की डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ फर्स्ट एड. उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे सीपीआर. पहले टर्म सुनाइए सीपीआर. सीपीआर इज कार्डियोपल्मोनरी रिसस्सिटेशन. Cardiopulmonary resuscitation. इसके बारे में हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये कब दिया जाता है? सीपीआर जो है ये फर्स्ट एड का पार्ट है, तो कब दिया जाता है? सीपीआर इज यूज्ड व्हेन देयर इज नो ब्रीदिंग. सीपीआर इज यूज्ड व्हेन देयर इज नो ब्रीदिंग एंड हार्ट हैज आल्सो स्टॉप्ड. एंड हार्ट हैज आल्सो स्टॉप्ड. And it includes closed chest cardiac massage. And it includes closed chest cardiac massage as well as mouth to mouth or mouth to nose respiration. Chest cardiac massage as well as mouth to mouth or mouth to nose respiration. When heart stops beating. When heart stops beating and breathing also stops. And breathing also stops.
the vital centers of CNS, the vital centers of CNS remain viable for 4 to 6 minutes. 4 to 6 minutes. The vital centers of CNS remain viable for 4 to 6 minutes. Thus, CPR can be life-saving. Thus, CPR can be life-saving even if performed within 4 to 6 minutes. Even if performed within 4 to 6 minutes after the cessation of heart beating and breathing also. After the cessation of heart beating and breathing also. Closed chest heart massage. Closed chest heart massage always carries some degree of risk of causing serious internal injuries by fracturing ribs that may be puncture lungs and liver. The risk is greatly reduced when the procedure is applied by someone who has had training through a special course. CPR or cardiopulmonary resuscitation can be done by the following steps. ये फॉलोइंग स्टेप से आपका किया जा सकता है. फॉलोइंग स्टेप्स में आपका जो है वो चलना आपका किस वे में था, ABC, ठीक है, जो आपको बताया था फर्स्ट एड में ABC. तो ए में क्या था आपका कि एयरवे इज नॉट ब्लॉक्ड, ठीक है. तो एयरवे ब्लॉक्ड नहीं होने से इसमें हमने सबसे पहले फिर क्या करना पड़ेगा. अब हम CPR प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्लियरेंस ऑफ एयरवे के बीच में कोई दिक्कत है उसको क्लियर करना है सबसे पहले बाय रिमूविंग ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयरवे, ठीक है. कोई भी अगर माउथ में कुछ भी एयरवे के थ्रू कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है उसको हमने क्लियर करना है, निकालना है उसको बाहर. बी है रिस्टोरेशन ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है. उसमें क्या था कि ब्रीदिंग होनी चाहिए, चलनी चाहिए प्रॉपर. अब इसमें ब्रीदिंग नहीं है तो ब्रीदिंग के लिए हमने उनको क्या करना है, बाय आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग उनको प्रोवाइड करना है. थर्ड था सी, रिस्टोरेशन ऑफ सर्कुलेशन. उसमें था कि पल्स वगैरह चेक करनी है हमने. इसमें क्या है कि जो सर्कुलेशन है उसको रिस्टोर कैसे करना है, बाय क्लोज्ड चेस्ट कार्डियक मसाज. उससे आपकी ये प्रॉपर सर्कुलेशन इसकी चल पड़ेगी. तो सबसे पहले था हमारे ए, उसमें था क्लियरिंग द एयरवे. क्लियरिंग द एयरवे में क्या है आपका, अनलेस द नेक इज ब्रोकन प्लेस द पेशेंट ऑन हिज बैक, ठीक है. सबसे पहले अनलेस द नेक इज ब्रोकन प्लेस द पेशेंट ऑन हिज बैक, वाइप एनी ऑब्स्ट्रक्टिंग सब्सटेंस. अब ए वाले में हमने जो था क्लियरिंग द एयरवे, उसमें कोई भी माउथ में कहीं भी ऑब्स्ट्रक्ट कोई फाउंड होगा तो उसको बाहर निकालना है, ठीक है. तो इसमें क्या करना है, वाइप एनी ऑब्स्ट्रक्टिंग सब्सटेंस आउट ऑफ हिज माउथ विद अ क्लॉथ रैप्ड ऑन द फर्स्ट 2 फिंगर्स टुगेदर, ठीक है. किसी क्लॉथ से हमने जो ऑब्स्ट्रक्ट है उसको हमने बाहर निकालना. प्लेस द पाम ऑफ वन हैंड ऑन फोरहेड. सबसे पहले आपने अपना पाम, अपने हैंड का पाम उसके फोरहेड पे रखना. उसके बाद टिल्ट द हेड बैक, और जो हेड है लिटाया होगा ना अपने पेशेंट को, तो
तो एक फोरहेड पे आ रखा है, उसको थोड़ा सा पीछे करना ताकि इसका वो पोजीशन जो है वो अपवर्ड चली जाएगी। उसके बाद टिल्ट द हेड बैक एंड लिफ्ट द चिन टू ब्रिंग इट फॉरवर्ड, लिफ्ट द चिन टू ब्रिंग इट फॉरवर्ड एज शोन इन फिगर। आपने चिन को है उसको ये ऊपर हो गया, नीचे माउथ ओपन करना। दिस पोजीशन प्रिवेंट्स ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे बाय द टंग। Opening the airway may start the patient breathing again. If the breathing does not start, then give the artificial breathing. अगर इस प्रोसेस से अगर उसकी ब्रीदिंग स्टार्ट नहीं होती तो हमने सेकंड बी वाला प्रोसेस स्टार्ट करना है, जिसमें कि हमने आर्टिफिशियल ब्रीदिंग उसको प्रोवाइड करवाना है। अब आर्टिफिशियल ब्रीदिंग में क्या होगा, विदाउट ऑक्सीजन a person can't survive for more than 4 to 6 minutes. ठीक, without oxygen a person can't survive for 4 to 6 minutes. Therefore, with cessation of breathing, immediately start artificial respiration to save his life. अब आर्टिफिशियल प्रोसेस जो रेस्पिरेशन आपने प्रोवाइड करवानी है वो कैसे करवानी है आपने, उसमें आपका सबसे पहले है माउथ टू माउथ रिसस्सिटेशन। ठीक है, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते हैं ना, उसमें आपका क्या होगा, पुट योर माउथ वाइड ओपन अराउंड द विक्टिम्स ओपन माउथ। विक्टिम का भी अपने माउथ क्या ओपन करना है और अपना भी माउथ ओपन रख के, उसके बाद पिंच हिज नॉस्ट्रिल्स शट, नोज को बंद करना, ये नहीं आप यहाँ से ब्लो कर रहे हो और वो खुला है, नोस्ट्रिल्स को आपने शट करना है और माउथ से माउथ आपने, उसके बाद एंड ब्लो हार्ड इनफ, ब्लो करना है पूरा ज्यादा तेज हार्ड आपने ब्लो करना है, जिससे कि सो हिज चेस्ट राइजेस, जिससे कि उसकी जो चेस्ट है वो राइज होनी चाहिए। ठीक है, माउथ टू माउथ आप उनको ब्लो कर रहे हैं तो इतना हार्ड होना चाहिए कि उसकी चेस्ट जो है वो राइज होनी चाहिए, ये नहीं कि आप कर रहे हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। उसके बाद when the victim's chest has expanded, जब आप राइज होगी एक्सपैंड हुई जब विक्टिम्स की चेस्ट, उसके बाद स्टॉप ब्लोइंग, उसके बाद वो बंद कर देना। रिमूव योर माउथ, अपना माउथ रिमूव कर लिया आपने। लिसन फॉर द साउंड ऑफ एक्सहेल्ड एयर एंड लुक फॉर द चेस्ट टू फॉल। ठीक है, फिर आपने क्या चेक करना है, अपना माउथ आपने रिमूव कर दिया वहां से, उसके बाद लिसन फॉर द साउंड ऑफ एक्सहेल्ड एयर, जो वो एयर उसने ली होगी इनहेल्ड की होगी वो एक्सहेल भी होगी बाद में। ठीक है, उसकी आपने साउंड सुननी है और फिर देखना है कि जो चेस्ट है वो फॉल हो गई, वापस अपनी पोजीशन पे आ गई है। ठीक, रिपीट दिस प्रोसीजर अंटिल द विक्टिम स्टार्ट्स टू ब्रीथ स्पॉन्टेनियसली, ये आपने प्रोसीजर को रिपीट करना है तब तक जब तक उसकी ब्रीथिंग स्टार्ट नहीं हो जाती। ठीक है, और ये भी नहीं करना कि आप जब विक्टिम हुआ पड़े तो उसके आधे घंटे बाद कर रहे हो तब तो कुछ आ जाएंगे। ठीक है, ये थी आपकी माउथ टू माउथ। ऐसे ही आपकी होगी माउथ टू नोज। माउथ टू नोज में ड्यू टू फ्रैक्चर्ड जॉ और ड्यू टू अदर रीजन, अगर आपके जॉ वगैरह कोई फ्रैक्चर हुआ पड़ा है, जिससे कि ये नहीं कि माउथ टू माउथ करने के लिए उसका अगर फ्रैक्चर है तो आप उसको तोड़ दो कि हाँ माउथ टू माउथ करानी है। ठीक है, तो उसमें ड्यू टू फ्रैक्चर्ड जॉ ड्यू टू सम अदर रीजंस, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन यूजिंग माउथ टू माउथ टेक्निक, देन यूज माउथ टू नोज टेक्निक। फॉर दिस seal your mouth to the victim's nose and shut the victim's mouth। उस टाइम में हम क्या करते थे, माउथ को ओपन रखते थे और नोज को शट करते थे। इसमें हमने नोज में करनी है तो नोज को ओपन रहेगा, ठीक है, माउथ आपका यहाँ और वो माउथ जो है वो शट रहेगा। उसके बाद एंड डू द सेम प्रोसीजर एज इन द केस ऑफ माउथ टू माउथ रिसस्सिटेशन। प्रोसीजर वैसे ही करना है लेकिन पोजीशन चेंज होगी आपने कहां से। ठीक,
उसके बाद थर्ड है आपकी रिस्टोरेशन ऑफ सर्कुलेशन बाय क्लोज्ड चेस्ट कार्डियक मसाज। क्लोज चेस्ट कार्डियक मसाज में उसमें कैसे करना है? नील बिसाइड द पेशेंट एंड फील द चेस्ट टू लोकेट द लोअर टिप ऑफ द विक्टिम्स ब्रेस्ट बोन। ठीक है, विक्टिम्स की ब्रेस्ट बोन वो आपने यहाँ से चेक करनी है चेस्ट में जब भी आपने देखना है किसी भी पेशेंट को। प्लेस द राइट हील ऑफ राइट हैंड अबाउट 1.5 inches above the tip and over the lower third of the breastbone. Then place the left hand at the top of the right. Position your body so that shoulders are directly above your hands with arms straight. उसे लगाते हैं ना, इसको पुश करना है, प्रेशर डालना है और इतना भी नहीं डालना कि उसके रिब्स टूट जाए। ठीक है, तो इसका ये प्रोसीजर रहता है। तो ये जब जिसको आता है वो ही फॉलो करे, जिसको नहीं आता वो नहीं कि हाँ जी हमें आ गए तो नहीं करना ही करना। विद अ स्मूथ फर्म थ्रस्ट पुश डाउन, यूज सफिशिएंट फोर्स टू प्रेस द लोअर 1/3 ऑफ द ब्रेस्ट बोन down at least 1.5 to 2 inches, letting your back and body do work. प्रेशर लगाना तो अपनी बॉडी को भी थोड़ा करना है। Then lift your weight, relaxing pressure completely. Don't remove your hands from the patient's chest. एक बार आपने जब आप प्रोसीजर कर रहे हो तो हैंड्स आपके वहीं रहेंगे, प्रेशर आपने अप्लाई करना है। ठीक, लेकिन जब आपने उसके बाद उसको थोड़ा रिलैक्स करना है, थोड़े प्रोसीजर को, तो हाथ वहीं पर रखना है, बाकी बॉडी आप अपनी रिलैक्स में दे देंगे, हैंड्स आपके वहीं रहेंगे। बिकॉज उसके बाद क्या रहता है, जब आप हैंड्स हटालेंगे तो दोबारा वहाँ पे हाथ नहीं रखा जा सकता, कई बार चेंज हो सकती है पोजीशन। Don't remove your hands from the patient's chest when you relax between compression. Never press the tip of the breastbone. ये चीजें कुछ ध्यान में रखनी। Never press the tip of the breastbone. Repeat this rhythmic compression. Press, release, 15 times at a rate of 80 to 100 times a minute. एक मिनट में 180 to 100 टाइम्स आपने ये 15 टाइम्स रिपीट करना है। ठीक, और करना कैसे? प्रेस,